Bhagavad Gita class. So we will start our class with Jai Radha Madhav Kirtan. Thank you Deval Dev. Physical science examination is there tomorrow, but still you came in the class. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Everybody, ready? Yeah, they go. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare
Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Sri Radhe. Jaya Radha Madhava, Sri Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Patita Pavana Gauranitai. Jaya Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Jaya Narsimha Dev, Jaya Bhakta Prahlad, Narsimha Dev, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jai Baladev, Jaya Mata Subhadra, Jaya
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे नित्य लीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमाद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमाद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की गुरु परम्परा आचार्य वृंद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वर गोस्वामी आचार्य वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा जमुना सरस्वती माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगलकारी जगधर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री श्री राधा माधव शौकी वृंद की श्री श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्वामित गौर भक्त वृंद की निताय निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories all glories to Sri Guru and Sri Gauranga Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नानाशास्त्रविचारनैकनिपुण नानाशास्त्रविचारणैकनिपुण स्वधर्म संस्थापकौ धर्मसंस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरणाकरो। मान्यशरणागतौ। राधा कृष्ण पदारविन्द भजन कृष्ण पदारविन्द भजन आनन्देन मत्तालिको आनन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। गोपाल। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले शिव। Hare Krishna. So we were reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 3, Karma Yoga, and we read till verse 15, I think. So we will start from verse 16 today. Number 16. Srimad Bhagavad Gita, Karma Yoga, 3rd chapter, verse 16.
एवं प्रवर्तितं चक्रं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः यः नानुवर्तयति अघायुरिन्द्रियाराम अघायुरिन्द्रियाराम मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति एवं प्रवर्तितं चक्रं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति अघायुरिन्द्रियाराम अघायुरिन्द्रियाराम मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. वो आदमी के लिए जिंदा रहना बेकार है जो सिर्फ अपने इंद्रियों तृप्ति के लिए जिंदा रहते हैं। हम लोग उनमें से हैं क्या? है। जवाब आ गया मेरे बड़े बेटे से। हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जिंदा है ना? माता जी भी बोल रही है, ऋतुश्री माता जी भी बोल रही है कि हाँ, यस। और कौन कौन है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सिर्फ जी रहे हैं? हाथ उठाओ, देखना चाहेंगे। सब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए, सिर्फ चंद्रा ज्योति माता जी के सिवा और हमारी क्या नाम सायना माता जी। तो तुम लोग किस कारण से তোমরা কি জন্য ইয়ে বেঁচে আছো? নিজে ভগবানের কিসের জন্য? সেবা করার জন্য। তোমরা নিজেদের আনন্দ নিজেরা ভগবানকে ছাড়া আনন্দ করতে ভালোবাসো না? নিজের মতো একটু ভালো থাকবো, ভালো খাবো, ভগবানকে কি দরকার, है ना? क्या जरूरत है भगवान का? है ना? तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो लोग जिंदा रहते हैं उन लोगों का जिंदा रहना बेकार है। भगवान खुद बोल रहे हैं। और जो आदमी, जो इंसान वेद का नियम नहीं मानते हैं, नहीं मानकर ये जो मनुष्य जीवन भगवान के सेवा में और भगवान के यज्ञ संपादन करने में नहीं बिताते हैं, उनका जीवन पाप कर्मों से, पापों से भरा हुआ रहता है। Who is the speaker here? Who is telling? My dear Arjun, Lord Shri Krishna. What he is telling to Arjun? कि Arjun, in human life, one who is not following the principles of sacrifice according to the Vedas, that has been described in the Vedas, one who is not following the process of sacrifice. Sacrifice means yagga. Yagga by Krishna, Vishnu. Yagga by Vishnu. यज्ञ का मतलब है विष्णु। जो कुछ भी हम लोग सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, वी शुड ऑफर इट टू विष्णु और कृष्ण। और अगर ये किसी को मालूम नहीं है और अगर मालूम होने के बाद भी मान नहीं रहे, मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहते हैं, तो दैट मैन्स ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ सिन, पापों से भरा रहता है। अभी जो लोग हाथ उठाए हो, अभी उठाए थे कि इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग जी रहे हैं, तो उन लोगों को मैं विनती करूँगा कि गौर से सोचो कि ये पापों का जिंदगी बिताना बेहतर लगेगा तुम लोगों को, या भगवान के सेवा में, भगवान के लिए यज्ञ संपादन करने वाले जिंदगी तुमको अच्छा लगेगा तुम लोगों को। घर जाके आज सोचना। अगर लगा कि नहीं, बहुत जी लिया, बहुत अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जी लिया, हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में ना, हम लोग यही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमको अच्छा लगे। इसीलिए बहुत बार बोलने के बाद भी हम लोग अपने रात का सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम, मंगल आरती का टाइम ठीक से नहीं कर पा रहे।
किसी एक को नहीं मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि साधना रिपोर्ट किसी भी तरह सब लोग भेज रहे हो तुम लोग. Still now, almost every sadhana report is just mechanically performed and you are sending that mechanical report. उसमें अभी तक मेरे नज़र में नहीं आया that heart has been involved in our sadhana. This is very unfortunate. That means our human form of life, we are still engaged in our sensual activities, in our sense gratificatory propensities, to fulfill our sense gratificatory propensities. अपने इंद्रिय तृप्ति में हम लोग इतने डूबे हुए हैं, हम लोगों को भगवान की तरफ मोड़ के, भगवान को देखकर भगवान के लिए कुछ करने का इच्छा भी नहीं हो रहा है मन में. सोचना चाहिए हम लोग को. Okay, so we will go through the purport of this verse, purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami श्रील प्रभुपाद की. कितने मेहनत किए थे ये महात्मा हम लोगों के लिए, कि ताकि हम लोग अपने ये इंद्रिय तृप्ति करने वाले जो एनिमल लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ का इस्तेमाल जंतु जानवरों की तरह कर रहे हैं हम लोग सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वहाँ से बाहर निकाल कर एक स्वस्थ जीवन हमको मिले. इसलिए ये महात्मा कितना तकलीफ उठाए, रात को 2-3 घंटा सोए, रात भर ट्रांसलेशन किए थे, ताकि ये सब पढ़ के हम थोड़ा अपनी ज़िंदगी को, ह्यूमन लाइफ को थोड़ा सुधर सके. So we will go through this verse. The Mammonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. बहुत गाधा की तरह मेहनत करो और बंदरों की तरह एंजॉय करो. ये है, दिस इज द थियोरी most of the people in this society is leading. गधों की तरह परिश्रम करो और बंदरों की तरह एंजॉय करो. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yajnas is absolutely necessary. बंदरों की तरह एंजॉय करने का मतलब, हम लोग तो अभी मालूम है ना, बड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे तो एक है, लेकिन उन लोगों को भी टीवी और ये मीडिया के जरिए मालूम हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना. एक बंदर का 20 गर्लफ्रेंड रहता है, 20, 25, 30. सो दे एंजॉय लाइक दैट विद देम. और उसके लिए क्या करते हैं ये हम लोग इंसान अभी सुबह से लेकर शाम तक एक भारी बोझा लेके घूमते रहते हैं पैसों की खोज में, ताकि आके रात को हम एंजॉय कर सके. इसे कहते हैं गधों की तरह मेहनत करो और बंदरों की तरह एंजॉय करो. तो ये श्रील प्रभुपाद किसी दूसरे पर्पट में लिखे हैं, इस पर्पट में शायद नहीं. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yajnas is absolutely necessary. उन लोगों के लिए, जो लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये यज्ञ परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है. One who does not follow such regulations in living a very risky life. भगवान को बिना देकर भगवान से इंडिपेंडेंटली जो जिंदगी बिताना चाहते हैं, उन लोगों का लाइफ जिंदगी बहुत रिस्की होता है. श्रील प्रभुपाद is telling us, being condemned more and more. By nature's law, this human form of life is specifically meant for self-realization in either of the three ways, namely karma yoga, jnana yoga और भक्ति योगा. Self-realization मतलब आत्म उपलब्धि, मैं कौन हूँ, किस लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्या मेरा ड्यूटी है, ये है अपने बारे में जानना. The real identity of myself, who am I. और ये जानकारी कहाँ से मिलेगा, कौन सा 3 रास्ता है, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग.
There is no necessity of rigidly following the performances of prescribed yogas for the transcendentalists who are above vice and virtue. But those who are engaged in sense gratification require purification of the above mentioned cycle of yoga performances. अगर हम लोग ये 4 नियमों का पालन ठीक से करेंगे, 16 माला जप करेंगे गुरुदेव के निर्देश के अनुसार, तो हम लोगों को वो योग्य परफॉर्मेंस, हर एक योग्य के परफॉर्मेंस करना, वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अभी सायना माता जी हमको बोलेंगे, सायना माता जी तुम्हें हमें बोलबे जे rigidly following the performances of the prescribed yogas for the transcendentalists who are above vice and virtue, जो ये 4 नियम का पालन करेंगे, भक्ति जो बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे, उनको हर सारा ये सब यज्ञ संपादन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम का जब 16 माला कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, मतलब they are following the principles that has been given by the previous acharyas in our Vaishnava Sampradaya. So there is no necessity of performing each and every yajnas very rigidly. सिर्फ ये करने से ही हमको सबका फल मिलेगा. But those who are engaged in sense gratification require purification by the above mentioned cycle of yoga performances. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं, इसीलिए उठ नहीं पा रहे, इसीलिए मंगल आरती नहीं कर पा रहे, इसीलिए ठीक टाइम पे भगवान का सेवा नहीं कर पा रहे. कुछ भी काम ठीक से नहीं होगा, भगवान का सेवा ठीक से नहीं होगा तो निश्चित रहो, पढ़ाई बोलो या कुछ भी बोलो, कुछ भी ठीक से नहीं चलेगा दिन में. और उन लोगों के लिए रास्ता क्या है? टू बिकम प्योर, परफॉर्म यज्ञस. छोटा छोटा एक फल लो, तुलसी पत्ता दो, उसमें भगवान प्लीज लीजिए, ग्रहण कीजिए. छोटा छोटा ये सैक्रिफाइस भगवान को ऑफर करो. ये छोटा छोटा जो सैक्रिफाइस हम लोग करेंगे, उसका फल स्वरूप एक ना एक दिन हम लोग प्योर हो पाएंगे, शुद्ध हो पाएंगे. There are different kinds of activities. Those who are not Krishna conscious are certainly engaged in sensory consciousness. Therefore, they need to execute pious work. The yoga system is planned in such a way that sensory conscious persons may satisfy their desires without becoming entangled in the reaction of sense gratificatory work. The prosperity of the world depends not on our own efforts but on the background arrangement of the Supreme Lord, directly carried out by the demigods. Therefore, the yajnas are directly aimed at the particular demigods mentioned in the Vedas. Indirectly, it is the practice of Krishna consciousness, because when one masters the performance of yajnas, one is sure to become Krishna conscious. But if by performing yajnas one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral codes. One should not therefore limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. हम लोग का चेतना स्थिर तो बिना काम किए हुए ऐसे चुपचाप आइडली बैठ नहीं सकते. चेतना को तो कुछ ना कुछ काम चाहिए. या तो अपने सेंसरी एक्टिविटीज में जुड़े रहो, मतलब इंद्रिय तृप्ति वाले कामों में जुड़े रहो. तो थोड़ा ओदिके सो जाओ. तो चंद्र ज्योति माता जी ओदिके, ये पासवान माता जी. तो इंद्रियों को 2 किस्म का कोई ना कुछ काम चाहिए. या तो तुम इंद्रिय तृप्ति वाले कामों में डूबे रहो, नहीं तो कृष्ण भावनामृत के सेवा में डूबे रहो. कुछ तो काम इंद्रियों को देना चाहिए. ऐसे हम बैठे बैठे नहीं हो सकते. अगर भगवान के सेवा में जुड़े रहने का उपदेश हम लोग नहीं देंगे तो तुम लोग बार बार रोज हर संडे को हम लोग क्या बोल रहे हो, वही याद दिला रहे कि जो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हो तुम लोग जाके घर में नहीं कर पा रहे हो, इसलिए करने की कोशिश करो. हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन घर जाके भूल जाते हैं. घर जाके देखते हैं 7 बज जाता है उठने में, 12 बज जाता है. 2 माला जाओ, 7 से 12 तक करते क्या है? 7 बजे उठने ठीक है, उसके बाद 5 घंटा. इतना देरी से उठने से तो घर वालों बोलेगा पढ़ाई करो. वो लोग उठने से पहले अगर हम लोग उठ जाएंगे, 2 माला जॉब 4 माला जॉब जो लोग जो जितना कर रहे हैं कर लेंगे तो कोई नहीं बोलेगा. तो ऐसे सेंसुअल एक्टिविटीज में अगर ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो मन कभी कृष्ण की तरफ नहीं जाएगा.
मन हमेशा चाहेगा वही इंद्रिय तृप्ति वाले कामों में डूबे रहने के लिए। और हम लोग अगर ये यज्ञ का छोटा छोटा चीज हम ऑफर करेंगे भगवान को, ऐसे आदत डालते डालते क्या होगा, एक दिन आएगा जब कृष्ण के साथ एक प्यार का, प्रेम का संबंध, क्योंकि हम किसको दे रहे हैं, ये जो ऑफरिंग हम लोग कर रहे हैं किसको दे रहे हैं? ऐसे कुछ फोटो तो नहीं है, कोई ऐसे वुडन फ्रेम में एक फोटो को तो नहीं दे सकते। यस, इनसाइड दैट फोटो कृष्ण इज रिसाइडिंग, सो आई एम ऑफरिंग दिस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, प्लीज एक्सेप्ट। और किस तरह से? ऐसे मैकेनिकली नहीं बिठा दिया, मंत्र बोल दिया, घंटा बजा दिया, ऐसा नहीं, दिल से आवाज यहां से होना चाहिए कि बहुत जतन से ये आपके लिए बनाया हूं मैं खीर। भगवान, मंत्र ज़्यादा हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम जानते हैं कि ये जो हम पकाए हैं प्यार से, थोड़ा तुलसी पत्ता देकर आपको प्यार से लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप ज़रूर लेंगे। ये जो बातें हम लोग करते हैं मन ही मन में, ये भगवान तक पहुँचता है। अगर ये बातें दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम आवर हार्ट, देन भगवान का एक और नाम क्या है? भावोग्राही जनार्दन। भावोग्राही मतलब ये जो मन का भाव जो है हम लोगों का ग्राही, ग्रहण करते हैं जनार्दन भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान को बोला जाता है कि भावोग्राही जनार्दन। He accepts everything, each and everything which has been offered to him from the heart, from the core of our heart. So what is necessary? What is necessary? In each and every Krishna conscious activity, our heart should be involved. ये जो काल के सेवा के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बैंडल जाओ, तो our heart, it should come from our heart. दैट एक सन्यासी आ रहे हैं, भगवान का एक प्रिय भक्त आ रहे हैं, उनके सेवा के लिए थोड़ा सेवा का मौका वहाँ मिलेगा, हम जाएंगे भगवान को खुश करने के लिए। क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उनका सेवा करने से। उनके डिवोटी जो भक्त है वो उनका सेवा करने से भगवान ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए हम जाएंगे। दिस सिग्नल शुड कम फ्रॉम आवर हार्ट, तब जाके एक मकसद रहेगा। और वहाँ मन अगर ये तो घर से बाहर जाने का एक मौका मिला, वहाँ जाके बहुत ये होगा, बहुत सारे लोगों से बातचीत होगा, नहीं, दिस आर ऑल सेंसुअल चिंता भावना, सेंसरी इंद्रिय तृप्ति वाले चिंता भावना है। ऐसे जाना ही नहीं है। जाना है तो ये सोचकर जाना है कि भगवान का कोई महान भक्त आ रहे हैं जो अपनी जिंदगी को दांव में लगा दिए हैं सिर्फ भगवान के नाम के प्रचार के लिए। बेंगलोर से आएंगे, कोलकाता एयरपोर्ट में उतरेंगे, वहाँ से तो डायरेक्ट गाड़ी लेकर मायापुर जाना आसान है। क्यों भाई इतना बैंडल होकर 2 घंटा वहाँ लेक्चर, 1 घंटा लेक्चर देकर, भक्तों से बात कर रात 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, क्यों इतना तकलीफ? इसलिए क्योंकि दे हैज डिवोटेड देयर लाइफ, ये जिंदगी कृष्ण के सेवा में दे दी। और अगर इन लोगों का, इन साधु महात्माओं का सेवा करने का मौका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो वैसे उन लोगों का गुण जो है भगवान के सेवा में, ये जिंदगी में दाव में लगा, वो थोड़ा बहुत हम में भी आएगा। ये सोचकर हमको जाना है। The association has a great power. Seva, the service attitude has a great power which can get transmitted if the heart is involved. अगर हृदय हमारा इन्वॉल्व है ना, सेवा के भाव में, सेवा का भाव लेकर अगर हृदय इन्वॉल्व है, तो दैट थिंग हैज अ ग्रेट पावर. इट कैन ट्रांसमिट वेरी इजीली फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर. इसीलिए द प्योरनेस, द प्योरिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम सोच सकते हैं, सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना प्योर श्रील प्रभुपाद जी थे. लेकिन जब हम सोचते हैं, जब हम देखते हैं दुनिया के हर देश के हर कोने में भगवान श्री कृष्ण का नाम, ये हरिनाम संकीर्तन फैल रहा है, we can just understand how pure Srila Prabhupada was, how pure soul was he. तो ये होना चाहिए, and that will give, heart involve करो. नियम जैसे हम अभी बोले इस पर्पट के शुरू में ही,
सैक्रिफाइस, और जब हार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नियम रह जाएगा। वो मॉरल कोड जो यहाँ बोला गया है, मॉरल कोड मतलब किताबों में जो कुछ नियम है ना, जैसे कि लॉ बुक में होता है ना कुछ मॉरल कोड्स, वो मॉरल कोड्स ये पेपर में रह जाएगा, पेज में रह जाएगा ऐसे बंद करके। लेकिन वो मॉरल कोड जब हम अपना दिल लगा के उसका इस्तेमाल करेंगे और नियमों का पालन करके हृदय से भगवान का सेवा करेंगे, तब ये सिर्फ किताबों के वो पन्ने पर ये मॉरल कोड की तरह बंद नहीं रह जाएगा। इट विल ये फैल जाएगा, सबके सामने प्रकाशित होगा। everybody can realize how nicely these young girls and boys they are performing their seva. जो लोग जाएंगे कल वहाँ सेवा करने के लिए, ये श्री प्रभुपाद का जो टीचिंग्स है वो लेके जाना है। हम कल ड्यूटी रहेगा, ये दोनों का एग्जाम्स है। वर्स नंबर 17, यस्त आत्मरतिरेव स्यात्, फिर से यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. मतलब क्या है? मतलब ये है इस श्लोक का, भगवान की सेवा जो व्यक्ति हृदय से करता है वो आत्मनि एवत मनो तुष्ट, अपने अंदर ही अंदर उनको सेटिस्फैक्शन एक है जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देगा। ये दिखावा करने वाला बात नहीं है। भगवान की सेवा जो हृदय से करते हैं उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन रहेगा वो सिर्फ वही महसूस करते हैं, दूसरे कोई नहीं, पास वाले भी नहीं, रिलेटिव भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, बीवी भी नहीं, बच्चे लोग भी नहीं, किसी को अगर ये सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हु टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ आत्मनि एवत मन तुष्ट, जिनका लाइफ सिर्फ इस काम में व्यस्त रहेगी कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा ड्यूटी है, और ये समझने के बाद कि मैं कौन हूँ समझने के बाद जो ये धारणा, जो ये साइंस दूसरे में बांटता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ही बिकम्स सेटिस्फाइड विद इन हिमसेल्फ। एंड हु इज सेटिस्फाइड इन द सेल्फ ओनली, फुल्ली सैटिस्फाइड, फोकस एकदम फिक्स्ड, लक्ष्य एकदम स्थिर, भगवान श्री कृष्ण का श्री चरण, बस गोल फिक्स्ड। वो उनके लिए कुछ ड्यूटी नहीं है, वो 4 नियमों का पालन करके इस स्टेज में पहुंचा है, अलग से उनको 4 नियमों का पालन करने का कुछ डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वट एवर ही परफॉर्म्स इट रिमेन्स विद इन द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, कभी उसका बाहर नहीं होगा, क्योंकि ही हैज़ प्रैक्टिस्ड वेरी हार्ड, बहुत कठिन तपस्या किए हैं, तब जाके ये स्तर पे आ गए हैं, इस स्टेज पे आ गए हैं वो, जहाँ मन ही मन में आत्मनि एवत मनो तुष्ट, उनका मन एकदम सेटिस्फाइड, फुल्ली सैटिस्फाइड, फिक्स्ड हो जाता है। कृष्ण, ओनली कृष्ण, नथिंग एल्स, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो दोस्त, नो सहेली, नो पिक्चर, इधर उधर गाना खेल कूद ना, फिक्स्ड। जैसे कि प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा, फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्कूल जाता था, मकसद यही था, वो भौतिक चीज़ों का पढ़ाई करने के लिए नहीं, ठीक है जा रहा हूँ वो तो ऑटोमेटिक मिलेगा क्योंकि स्कूल जा रहे हैं सब बच्चा उसी को वही पढ़ने के लिए। प्रहलाद महाराज का लक्ष्य क्या था,
जो दोस्त लोग हैं, प्लीज डोंट बाइट योर नेल्स, जो दोस्त लोग हैं उन लोगों में ये जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो शिक्षा है, आत्म उपलब्धि, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये जो कंसेप्शन है, ये अंश होकर पूर्ण का सेवा करना ही एक अंश का धर्म होता है। ये सब शिक्षा प्रहलाद महाराज यूज्ड टू गिव देयर फ्रेंड्स जब टीचर नहीं रहता था क्लास में। और हमारे स्कूल में क्या होता है, जब टीचर नहीं रहते, ओह पिक्चर के बारे में शुरू हो गया, कल्कि में क्या होगा, कल्कि का सेकेंड पार्ट कब आएगा, ये सब चर्चा शुरू हो जाता है हम लोगों में। हाँ, कल्कि का सेकेंड पार्ट 2025 में आ जाएगा। ओह, ये हम लोग ऐसे टाइम बिताते हैं when we are free, when there is no teacher in the class. And what Prahlad Maharaj used to do, he used to distribute this self-realized knowledge in his friends, amongst his friends. और वही होता है एक मनुष्य शरीर पाने का सही इस्तेमाल, सही उपयोग। हमेशा, रोज, हर पल कृष्णा रिलेटेड टॉपिक्स, हाउ कैन वी स्प्रेड, हाउ कैन वी प्रीच, प्रचार कैसे और आगे बढ़ सकता है, यही सब सोचो। ये सब हमेशा सोचेंगे तो मन में आ सकता है फैमिली का ड्यूटी कब करें। दैट इज दैट टाइम व्हेन वी थिंक अबाउट कृष्णा throughout the day, how to improve, how to take this movement of Krishna consciousness, this Sankirtan movement more and more forward, then Krishna takes that responsibility to look after your family. That becomes the responsibility of Krishna कि ये भक्त मेरा दिन भर मेरे लिए सोच रहा है, तो इसका जो जिम्मेदारी है वो मेरा हो जाएगा। I will take the responsibility. और जब कृष्णा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, what will happen? बहुत आसानी से उसका संसार चलेगा, उसको दूसरों की तरह उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगा। Yes, that is a fact. ये एकदम वास्तव अभिज्ञता से बोल रहा हूँ मैं। और इसका पर्पट मिलेगा, ये वेदावेस है ना, निकालो 1935। फर्स्ट कैंटो 19th chapter 35 verse, पर्पट निकालो। When a devotee completely surrenders unto Krishna, when a devotee surrenders to Krishna and give his life in Krishna's service, then that devotee's responsibility, family responsibilities, everything becomes the responsibility of Krishna. और उनका ये फैमिली चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत होता है, वो चीज़ के बारे में, वो कैसे आएगा, क्या होगा, वो डिवोटी को सोचने की ज़रूरत ही नहीं होता है। कृष्णा टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए पर्सन पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। ए पर्सन हु इज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, प्लीज हियर द पर्पट वेरी केयरफुली। एक मिनट, किसी एक को दिया है मैंने जो। A person who is fully Krishna conscious and is fully satisfied by his acts in Krishna consciousness, जो व्यक्ति, जागृति माता जी, जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस हैं और फुल्ली इन्वॉल्व इन कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज, व्हाट हैपेंस, नो लॉन्गर हैज एनी ड्यूटी टू परफॉर्म। कोई ड्यूटी परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं होता है। ड्यू टू हिज बीइंग कृष्ण कॉन्शियस, all impiety within is instantly cleansed. क्योंकि वो भक्त कृष्ण भावना में डूब गए हैं, उसके अंदर जितना impurities है वो अपने आप दूर हो जाता है। अपवित्र ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस स्मरेत, स्मरण करने से ही क्या होता है, यस स्मरेत पुंडरीकाक्ष में के बारे में स्मरण करने से ही क्या होता है, सौभाग्य अभ्यंतरो सूची, बाहर और अंदर से शुद्धता आ जाता है। हम लोग कितना भी पवित्र हैं या अपवित्र हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अगर हमारे मन में पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण के बारे में हमेशा हम लोग सोचते हैं, तो वी बिकम प्योर फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। सौभाग्य अभ्यंतरो सूची।
ड्यूटी क्या है हम लोगों का? सिर्फ कृष्ण भावना में रहना। अपना काम बंद नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि हमारा पढ़ाई बंद हो जाएगा, हमारा पढ़ाई में एग्जाम में हम लोग फेल हो जाएंगे। नहीं, कृष्ण के बारे में सोचने से हम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ है। क्योंकि जब कृष्ण भगवान भावग्राही जनार्दन को जब मालूम होता है कि दिस सोल इज ऑलवेज थ्रू आउट द क्लॉक, राउंड द क्लॉक ही और शी इज थिंकिंग अबाउट मी, ये मेरे बारे में सोचते हैं, जब कृष्ण को ये मालूम होता है, देन कृष्ण टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्योर हिम। Then Krishna takes the responsibility to fulfill all his desires, family duties, family responsibilities. Krishna takes care. ये विश्वास लाओ, तब जाके हम लोग ना थोड़ा टाइम कृष्ण के साथ, कृष्ण कथा सुनने में, कृष्ण की कथा पढ़ने के लिए हम लोग को सोच नहीं आएगा, हाँ मेरा पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं होगा। करके देखो, नहीं होगा। Due to his being Krishna conscious, all impiety within is instantly cleansed, an effect of many thousands of yoga performances. सिर्फ कृष्ण भावनामृत सेवा में रहने से ही हजार यज्ञों का फल इंस्टेंटली मिल जाता है, सेकंड में मिल जाता है। By such clearing of consciousness, one becomes fully confident of his eternal position in relationship with the Supreme. His duty thus becomes self-illuminated by the grace of the Lord. By the grace of the Lord, अपने आप हो जाता है, उसको कुछ अलग से कोशिश करने की जरूरत ही नहीं होता है। And therefore he no longer has any obligations to the Vedic injunctions. Such a Krishna conscious person is no longer interested in material activities and no longer takes pleasure in material arrangements like wine, women and similar infatuations. जब एक भक्त, एक इंसान जब कृष्ण भक्त बन जाएंगे, कृष्ण का सेवा करते करते जब उनका हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, हृदय इन्वॉल्व हो जाएगा, तब क्या होगा? धीरे धीरे जिन चीज़ों पर उसको ज़्यादा आसक्ति था, चाहे वो फेसबुक, यूट्यूब हो, शराब हो, नाइट क्लब हो, डिस्कोथेक हो, फिल्मी गाना हो, कुछ भी हो, वहाँ से मन भटक जाएगा एंड ही विल गेट फिक्स्ड अप इन कृष्ण भावना। 1935 of is not interested in anything. उनको कुछ ड्यूटी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है मतलब वो क्या कुछ नहीं करते हैं कि हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाते हैं, नहीं। He performs everything by the grace of Krishna. कृष्ण की कृपा से वो सारा जिम्मेदारी इतना एफिशिएंटली करता है, लेकिन दूसरों की तरह उतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो दूसरे लोग दिन भर मेहनत करके जो दे पाते हैं अपने संसार को, वो कृष्ण भक्त 1 घंटा 2 घंटा फैमिली को देकर हो जाता है वो काम आसानी से हो जाता है। कैसे होता है हम लोग को समझ में नहीं आएगा। इफ़ वी बिकम अ प्योर डिवोटी एंड इफ़ वी ट्राई टू सर्व कृष्ण from our heart, then Krishna will arrange some things which we can feel कि yes, ये परिवर्तन आ रहे हैं। ये काम तो पहले मैं कितना संसार के लिए चिंता करता था, लेकिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ ये रास्ता नहीं निकालता था। अभी तो आसानी से हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, पता नहीं चलेगा। एक बार कृष्ण के लिए थोड़ा सा टाइम देकर तो देखो, थोड़ा सा टाइम इन्वॉल्व करके देखो कृष्ण क्या देते हैं। 2 हाथ से जितना हम लोग देने की कोशिश करेंगे, जो मिलेगा हम लोग को, वो कोशिश अगर दिल से हो तो जो मिलेगा हम लोगों को, वो हम लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। वो हम रखने का जगह नहीं मिलेगा हम लोग को, इतना आएगा। एंड इट्स अ फैक्ट प्रभु। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ फ्लावरी वर्ड्स हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच है। और ये सच को अनुभव करने के लिए वी हैव टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। वी हैव टू बी सेल्फलेस, नॉट सेल्फिश। वी हैव टू बी सेल्फलेस एंड थिंक अबाउट द अदर्स who are not fortunate enough to get this Hari Naam, this Hari Katha regular basis. जो लोग इतना फॉर्चुनेट नहीं हैं,
जिन लोगों को ये हरि के बारे में, श्री हरि के बारे में सुनने का और नाम लेने का मौका ही नहीं मिला, उन लोगों के बारे में दुख आना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए. देन ओनली वी कैन बिकम सेल्फलेस. अदरवाइज वी विल रिमेन engrossed in selfish thoughts always. मैं और मेरे, हम दोनों और हमारे दो, इन चारों को लेकर संसार चलेगा. और जब कृष्ण का संसार हम लोग करेंगे ना, हजारों आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा मालूम नहीं होगा. कृष्ण विल सेंड द सोल्स टुगेदर. और एक वर्स प्लीज, अनदर 5 minutes. 18. नैव तस्य कृतेनार्थ नैव तस्य कृतेनार्थ न कृते नेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः. नैव तस्य कृतेनार्थ नैव तस्य कृतेनार्थ न कृते नेह कश्चन न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः. A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. गतो मुकुंदम परिहृत करतम. जो मुकुंद के चरणों में शरण ले लेते हैं, उनको ना तो किसी पर कोई ड्यूटी रह जाता है, ना कुछ ऑब्लिगेशंस रहता है, ना किसी के ऊपर निर्भर करने की ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कुछ भी कारण हो. नहीं. A Krishna devotee only depends entirely on Krishna, Krishna's desire. हर काम में कृष्ण चाहे तो ऐसा होगा, कृष्ण चाहने से ऐसा होगा. मेरा कुछ ड्यूटी नहीं. He will perform his duty very freely. केयर फ्री माइंड से वो अपना ड्यूटी करेगा कि yes, this is my prescribed duty that has been set by Krishna and his devotees. हमारे पूर्वतन आचार्य लोग सब ये ड्यूटी, प्रेस्क्राइब ड्यूटी हम लोगों के लिए फिक्स कर दिए हैं, जो कृष्ण के इच्छा के अनुसार ही वो लोग किए हैं. सिर्फ ये ड्यूटी ठीक तरह से परफॉर्म करने से ही सब खुश हो जाएगा. मुझको अलग से कोई ड्यूटी और ये ऑब्लिगेशंस, किसी के ऊपर निर्भर करना आर्थिक कारण से ज़रूरत ही नहीं होगा. कृष्ण विल सेंड एवरीथिंग. सो वन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड, अपने बारे में अपना परिचय जब जो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, एक छोटा सा अंश हूँ बस. लेकिन कृष्ण तो छोटा नहीं है, कृष्ण बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे पावरफुल है. लेकिन वो सबसे पावरफुल का छोटा अंश मैं हूँ. ही इज द मोस्ट पावरफुल. सो व्हाई शुड आई थिंक? हमको सोचने की ज़रूरत क्या है? हमको इतना टेंशन उठाने की ज़रूरत क्या है? हम तो किसी छोटे मोटे आदमी के साथ रिश्ता नहीं रखा कि हमेशा सोचना पड़ेगा पैसा कैसा आएगा, ये कैसा आएगा. सबसे धनी व्यक्ति है, उनके साथ संबंध जुड़ गया. प्लाग हम ज्वाइन कर दिए, हाँ कृष्ण कॉन्शियस, बस प्लाग ज्वाइन करने से पावर आ गया ऑटोमेटिक. ही बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल. जैसे पावर हाउस से ये बिजली जलता है, वहां जाके ऑन करना पड़ता है क्या? अपने घर में प्लाग डालो, स्विच ऑन करो, जल गया. पावर के यहाँ से लोकल आ रहे हैं नहीं, बीटीपीएस से आ रहे हैं. कितना दूर है यहाँ से, कैसे आ रहे हैं? ऐसे संबंध रखने का ये सोचो, हाउ टू फिक्स दैट रिलेशनशिप विथ कृष्ण. बाकी का चिंता नहीं है, बाकी अपने आप आएगा. A self-realized man is no longer obligated to perform any prescribed duty save and except activities in Krishna consciousness. Krishna consciousness is not inactivity either, as will be explained in the following verses. A Krishna conscious man does not take shelter of any person. Devarshi bhutapta ninang pitrinam na kinkaro nayam charini charajan गतो मुकुंदम न परिहित करतम न. देवर्षि भूताप्त निनांग पितृनाम नकिं कर च निनीच राजन नायम रिनीच राजन सर्वात्मनो जो शरणं शरणं गतो मुकुंदम परिहित करतम. शरण अगर
मुकुंद के शरण में हम लोग आ गए तो हमको और चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना देव देवियों का चिंता करने की जरूरत है, ना अपने पितृलोक फोर फादर्स जो है उन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। Everyone becomes satisfied if we take shelter unto the lotus feet of Mukunda. मुकुंद कौन है? मुक्ति ददाति इति मुकुंद, one who gives मुक्ति from these threefold miseries. ये दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है, दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है, तीन दुख भरा जो ये है, हम लोग को हमेशा ये करते हैं। तो वो सत्व रजो तमो का जो त्रिशूल है वो दुख आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों दुख से हम लोग भरे हैं अपने आप के कारण से। आदि भौतिक मतलब दूसरे कीट पतंगों ये जब काटता है, वायरस आके जब कोरोना दे देते हैं, ये सबसे दुख मिलता है हम लोग को। और आदि दैविक सुनामी जैसा, ऐसे नेचुरल कैलामिटीज, तो ये तीन दुख से हम लोग को मुक्ति दे देगा। कौन? मुकुंद। हु इज मुकुंद? मुक्ति ददाती, वन हु गिव्स लिबरेशन, मुक्ति देने वाले हैं मुकुंद। उनके शरण ले लो, सरेंडर, मुकुंदेर शरणागत हो, देन एवरीथिंग विल बी अचीव, सब कुछ मिल जाएगा। Whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. कोई दायित्व और निभाने की जरूरत ही नहीं है दूसरों की, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे वो जितना भी। तो आज का क्लास का शिक्षा क्या मिला हम लोगों को? इफ वी टेक शेल्टर, আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রী মুকুন্দের চরণের আশ্রয় নিই, তাহলে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে বেশি চিন্তা করি, जो चीज़ों को लेकर हम लोग ज़्यादा टाइम बिताते हैं, ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं, क्या किस विषय में? कैसे हमारा फैमिली चलेगा, फैमिली लोगों को कैसे खुशी सुख दे पाएंगे, কি করে আমরা আমাদের পরিবারের লোকজন, বাবা মা ছেলে পুলেদের সুখে রাখবো, এই যে চিন্তাটা সবসময় করি, এই চিন্তা কার চিন্তা? আমাদের চিন্তা না। আমাদের চিন্তা কি? भगवान का सेवा करना। भगवान का सेवा जब हम हृदय से करेंगे, भगवान क्या देखेंगे? ये मेरा भक्त मेरा सेवा इतना अच्छी तरह से दिल लगा के कर रहे हैं, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है संसार के लोगों का ख्याल रखने का, तो चलो हम इसका जिम्मेदारी लेंगे। भगवान खुद लेते हैं। और भगवान जब किसी संसार का जिम्मेदारी ले लेते हैं, उस संसार का कुछ ये टेंशन हो सकता है क्या? ये है आज का सार। हरे कृष्णा।